Hello students. Students, in previous lecture we had discussed the meaning and features of partnership. Now in this lecture we are going to discuss recording of partnership transactions, or we can say distribution of profit among partners. First of all, question rise कि do we prepare partnership accounts or financial statement for partnership in a same manner as we have studied for sole proprietorship in 11th standard? Means, do we prepare same trading account, profit and loss account and balance sheet? Answer is yes. For partnership firm also, we prepare same trading account, profit and loss account and balance sheet. But in partnership accounts, one more account is prepared, which is just the extension of profit and loss account called profit and loss appropriation account. Okay, in 11th standard, you have learned to prepare profit and loss account. Okay. What you get from this profit and loss account? No doubt, to net profit. Okay. Now in this 12th standard, we are not going to learn profit and loss account again. We are just going to learn profit and loss appropriation account. Appropriation account for the year ended 31st March 2020. Particulars: amount in rupees, again particulars and amount in rupees. This is your debit side and this one is credit side. So first of all, this net profit is transferred to this profit and loss appropriation account. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वहां से जो नेट प्रॉफिट है दैट वुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड फॉर दिस एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Got it? So in this way, this profit would be transferred to P&L appropriation account, and we will write by profit and loss account being net profit. This will be shown here. So in 12th standard, we will start our accounting from this account only. So फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन राइज कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है. यू नो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स पार्टनर एंड टू पास द ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग पार्टनर्स. पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, salary to partner, interest on drawing is to be charged or not. So to pass all these transactions regarding partners, this P&L appropriation account is prepared. And number 2, to distribute the profit amongst partner, this P&L appropriation account is prepared. Okay, so now we are going to discuss one by one all the transactions relating to partner. And first one is for providing interest on capital
स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, ट्रीट योरसेल्फ एज अ बिजनेस। जब भी आप अकाउंट्स करेंगे तो अपने आप को आपने बिजनेस मानना है, अपने आप को राम राहुल कुछ नहीं मानना। यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अकाउंटिंग इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। 11th में पढ़ा है आपने, अकॉर्डिंग टू विच बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। सो ट्रीट योरसेल्फ एज अ बिजनेस। और अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि व्हेनेवर दिस इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, देन इसकी नेचर क्या है, बिजनेस के लिए क्या है ये? एग्जैक्टली इट इज योर एक्सपेंस। फॉर विच? बिजनेस। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एंड वी नो दैट ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। सो एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसे मिलेगा ये इंटरेस्ट? नो डाउट पार्टनर्स को। और हम पार्टनर्स को कैश नहीं देते हैं, क्या करते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल में उतना ही अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ऐड कर देते हैं। सो एंट्री वुड बी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वी कैन से करंट अकाउंट, करंट अकाउंट्स। अब क्वेश्चन आया कि सर ये कैपिटल और करंट अकाउंट क्या है? देखिए हम लोग लेटर ऑन वी विल डिस्कस डिटेल इन दिस फॉर दिस कैपिटल अकाउंट्स। देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, whenever partner, sometimes partner decide not to change their capital. पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपिटल चेंज नहीं होगी। सपोज एक्स वाई जेड आर 3 पार्टनर्स, दे हैव इन्वेस्टेड 10 लाख ईच, हर एक ने 10-10 लाख लगा दिया। मोर ओवर दे हैव डिसाइडेड नॉट टू चेंज देयर कैपिटल, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल में ये 10 लाख ही रहेंगे। सो इन दैट केस क्वेश्चन राइज, सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, जो इंटरेस्ट ऑन गोइंग चार्ज करेंगे, सैलरी कमीशन देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सब कहां आएगा? If we show all these amount to capital account, then definitely capital will be changed. But they have decided not to change their capital. So in that case, we open or raise current accounts for partners. Okay? So interest on capital will be transferred to partners' current account. But if the capitals are fluctuating, then no doubt interest on capital will be added to capital. कैपिटल चेंज हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सैलरी से, कमीशन से, प्रॉफिट से, होने दो चेंज कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। हालांकि हम इन्हें और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ फॉर ट्रांसफरिंग this interest on capital to profit and loss appropriation account, नो डाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा आपकी बार? P&L एप्रोप्रिएशन में। क्यों जाएगा? आप कहोगे सर ये तो एक्सपेंस है, दैट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू पास द ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग पार्टनर्स। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे रहे हो आप? पार्टनर्स को। किससे रिलेटेड है? पार्टनर से। सो ऑटोमेटिकली कहा जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। गॉट इट? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है नॉर्मली, दैट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो व्हेन यू विल ट्रांसफर दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट to interest on capital account. Okay, so when you will transfer this interest on capital to profit and loss appropriation account, then posting इसकी क्या होगी? It would be transferred to debit side of P&L appropriation, क्योंकि P&L appropriation account debit, posting का रूल याद करिए आप, इसे रीड आउट करिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दो, किससे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहां आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। सपोज यू आर हैविंग 2 पार्टनर्स, फर्म इज हैविंग 2 पार्टनर, 2 पार्टनर हैं, तो जो एक्स को देना है वो एक्स में डाल दो, जो वाई का है वो वाई को दो, और टोटल इंटरेस्ट बाहर आ जाएगा।
Got it? So this is the entry relating to interest on कैपिटल, और क्योंकि एक्सपेंस है ऑल द एक्सपेंसेस शोन इन डेबिट साइड बिकॉज है तो पीएनएल ही इधर. चलिए नेक्स्ट वन इज इंस्टेड ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर. सो नेक्स्ट एंट्री वुड बी because it may be given or mentioned in partnership deed to provide salary or commission to partner. दोनों का सेम ट्रीटमेंट मैं यही दिखा रहा हूं. for providing salary or commission to partners. Now sometimes it may be given in partnership deed to provide commission or salary to partner. Then again it is your expense and all the expenses are debited. So entry would be partners salary or commission account debit to किसे दोगे? Again capital पे. So to partners कैपिटल, और अगर कैपिटल क्या है फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. सो फॉर प्रोवाइडिंग सैलरी दिस एंट्री वुड बी पास्ड एंड फॉर ट्रांसफरिंग द सेम फॉर ट्रांसफरिंग सैलरी और कमीशन टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन. क्या एंट्री होगी? एक चीज और याद रखना बेटे, देयर इज ऑलवेज क्लोज रिलेशनशिप. क्लोज रिलेशन मींस अकाउंट्स में अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन को एक बार डेबिट कर दिया तो सेकंड टाइम इट वुड बी क्रेडिटेड, मतलब इससे रिवर्स होगी. तो कीप इन माइंड द रिवर्स रिलेशनशिप. ओके, सेम एक चीज अगर आपने डेबिट कर दी दूसरी बार वो डेबिट नहीं होगी, अगर वो ट्रांसफर हो रही तो क्रेडिट होगी. सो नाउ द एंट्री वुड बी ट्रांसफर एंट्री वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस. इसे आप ये भी कह सकते हो कि क्लोजर ऑफ सैलरी और कमीशन अकाउंट क्लोज कर रहे हो आप. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट. नाउ अगेन पोस्टिंग करिए इसकी. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू क्या आ जाएगा यहां पे? पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है मैंने इसलिए यहां दिखा दिया. गॉट इट? नाउ समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड टू ट्रांसफर सम ऑफ द प्रॉफिट, अ फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व. क्वेश्चन में कह सकता है कि ट्रांसफर 10% ऑफ दिस प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व. अगर ऐसा कह रखा है तो क्या एंट्री होगी? अलग से ही बता देते हैं इसे. नाउ फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू रिजर्व, if it is given in question to transfer some of the profit to reserve, then entry would be profit and loss appropriation account debit to reserve account. So now the posting would be to reserve account. Student, one question may be asked by you. आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये एक्सपेंसेस हैं और पीएनएल में भी एक्सपेंसेस जाते थे, तो हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर, दीज आर योर एक्सपेंसेस, देन हमने इन्हें पीएनएल में क्यों नहीं दिखाया? तो स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
only those items are recorded which are charge against profit. Charge against profit means पीएनएल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आपने 11th में डिस्कस किया, उसमें सिर्फ वही एक्सपेंसेस आएंगे जो जरूरी हैं, जो हमारे लिए चार्ज है. चार्ज का मतलब विच आर कंपल्सरी. अ फर्म और बिजनेस हैव टू पे वेदर इट इन्वॉल्व्स इनटू लॉसेस. चाहे बिजनेस में लॉस हो रहे हो आपको देने पड़ेंगे. सो ऑल द चार्ज आइटम्स आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट इन दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली, अब बात आती है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, all the expenses relating to partners are not necessary, they are not charge against profit, they are just appropriations on profit. got it? appropriation का मतलब कि इनको देना जरूरी नहीं है. हमारे पास sufficient profit होंगे तो हम ये देंगे उन्हें, नहीं तो हम इन्हें नहीं देंगे. means due to these expenses of partner, firm cannot be involved into losses. firm को loss नहीं हो सकता इनके कारण. got it? चलिए सो क्लियर हो गया ना आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस से पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया हमने? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस कंपलसरी है बनाना. इसमें ऑल द चार्ज आइटम्स आर शोन हियर, बट हियर जो पार्टनर से रिलेटेड अमाउंट है दे आर नॉट चार्ज, दे आर जस्ट एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट. मींस इनको देना जरूरी नहीं है. सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. चलिए एक और, एज पर पार्टनरशिप डीड इट मे बी आस्क्ड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. You know, sometimes partner withdraw some money from business for their personal use. Okay, so private use के लिए जब वो निकालेंगे तो it may be asked in partnership deed to charge interest on such drawing. तो interest यहां आ गया for charging interest on drawings. So आप बताइए कि whenever this interest would be charged from partner, then what is the nature of this interest on drawing? Exactly, the nature of interest on drawing is income. business के लिए income है, because this time we are taking interest from partner. partner से interest ले रहे हैं तो business के लिए तो क्या हो गई है? income हो गई. and we know that all the incomes are credited. so entry would be reverse. जैसे interest on capital था उससे reverse होगी. क्या? partners कैपिटल और करंट अकाउंट्स डेबिटेड और डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट. गॉट इट? सो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया और पार्टनर से लिया. बेटा एक चीज और माइंड में रखना, अगर आपने पार्टनरशिप अच्छे से करनी है, नेक्स्ट 5 चैप्टर्स में आपको काम आएगा. ये गुरु मंत्र है कि जब भी पार्टनर को कुछ भी अमाउंट देना है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना, और जब भी पार्टनर से कुछ लेना है तो उसे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना. गॉट इट? इन प्रीवियस एग्जांपल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वी हैव प्रोवाइडेड सैलरी और कमीशन टू पार्टनर. देन आप नोट करिए कि वी हैव क्रेडिटेड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. गॉट इट? बट नाउ दिस टाइम वी आर चार्जिंग, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हैं. तो वेन एवर सम अमाउंट आर टेकन फ्रॉम पार्टनर देन पार्टनर्स कैपिटल वुड बी डेबिटेड. सो रिमेंबर, जब भी पार्टनर कुछ देना है तो उसे क्रेडिट करना है और उससे लेना है तो उसे डेबिट करना है. सो अब इसे जब ट्रांसफर करेंगे आप, फॉर ट्रांसफरिंग this interest on drawings, जब इसे आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? देन एंट्री वुड बी, अब रिवर्स, आपको बताया था रिवर्स रिलेशन. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वुड बी डेबिटेड. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Got it? So जब इसे पोस्ट करोगे तो क्या होगा? Now profit and loss appropriation account would be credited. So in the credit side of P&L appropriation, you will show by interest on drawings x y. जो x से लेना है x में, y से y, और यहां दिखा दीजिए. नाउ क्या करेंगे आप?
बैलेंस करिए, टोटल करिए। मीन्स इन केस ऑफ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कब होगा आपका, प्रॉफिट कब होगा, when your credit side will exceeds your debit side, जब आपकी क्रेडिट साइड डेबिट को एक्सीड करती है, then there would be प्रॉफिट होगा पार्टनर को। एंड दिस प्रॉफिट, इस प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या होगी, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होंगे तो दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर। अब फिर से मैंने बताया था कि जब भी पार्टनर कुछ देना है तो क्या करेंगे, गुड, क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस किस को जाएगा, डेफिनेटली पार्टनर्स को जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। व्हाट इट, यहां लिखोगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, या यूं लिख दो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देयर मे बी 2, 3 और 4 पार्टनर्स, कई पार्टनर होते हैं। सो किस में करेंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिकॉज नाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 2 और मोर पार्टनर, और पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटेंगे, तो वो रेशियो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी, एंड इन दैट पर्टिकुलर रेशियो दिस प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ कैसे यहां करोगे, इसे हम लिखेंगे टू, यू कैन से डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। गॉट इट, डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कहां, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। अब बांट दीजिए, एक्स के प्रॉफिट एक्स में दे दो और वाई के प्रॉफिट वाई में दे दो, इन दिस वे प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। और स्टूडेंट एक चीज याद रखना कि यहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, still treatment relating to interest on capital and interest on drawings are pending. So we will discuss the treatment relating to this interest on capital and interest on drawing in the next video. Thank you.